Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Replication of Eukaryotic DNA Part 1. Let us see the contents. What is DNA replication? Features of eukaryotic DNA replication. Components required for eukaryotic DNA replication. Replication process, initiation, elongation and termination of eukaryotic DNA replication and figures. So this is the content of our presentation. So let us see the definition. What is DNA replication? DNA replication is an autocatalytic semi-conservative process of generating exact new copy of DNA molecule with the help of various proteins and enzymes. So here the DNA molecule carry on its replication, and it is called autocatalytic process because the DNA molecule itself monitor its own replication. Therefore, it is autocatalytic process. And another important thing is that it is a semi-conservative mode of replication, because during the process of DNA replication, out of two strands, one strand is old and another strand is new strand. So therefore, one strand is conserved, that is old strand is conserved, and to it another new strand is added. Therefore, it is a semi-conservative process. So these are the significant points that you have to remember in terms of DNA replication. Now we shall see the important features of eukaryotic DNA replication. What are the important features? Now this eukaryotic DNA replication starts or occurs during synthesis phase, and it is designated as S phase of cell cycle. Okay, so this is the phase where number of proteins, enzymes and DNA molecules are synthesized before the cell enters into its division cycle. Okay, mitotic division cycle. So therefore, the replication occurs in S phase of the cell cycle. General rate of replication is 3000 base pairs per minute. So it is a general observation where during the process of eukaryotic replication, 3000 base pairs are added per minute. It is bidirectional process. Okay, DNA replication is a bidirectional process. दो डायरेक्शन में चलती है, where one strand is leading strand and another strand is lagging strand. So ये bidirectional process होता है. जब ये इसका फिगर आएगा तो आपको समझ में आएगा. There are many Orici sites on eukaryotic DNA forming origin bubbles called replicon. So during the process of eukaryotic DNA replication, there are number of origin sites where replication process begins, and during that process the separation of single strands creates a kind of bubbles, and these number of bubbles along with its protein machinery or protein accessories is called replicon. तो ये फिगर देखने के बाद भी पता चलेगा कि यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर बहुत सारे ओरिजिन साइट्स हो सकते हैं, जैसा कि प्रोकैरियोटिक में एक होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो सकता है, बिकॉज यूकैरियोटिक डीएनए इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल, इजंट इट. ये बड़ा मॉलिक्यूल है. प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर अगर हम इसका करेंगे तो यूकैरियोटिक डीएनए ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं. One human chromosome need 35 days to replicate with one Orici site. So this is also a general observation. अगर ह्यूमन का क्रोमोसोम कंसिडर किया जाए और उसके ऊपर एक ही रेप्लिकेशन का ओरिजिन है ऐसा कंसिडर करते हैं तो 35 डेज़ के अंदर एक पूरा के पूरा ह्यूमन डीएनए यानी कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है. Initiation starts from Orici site, that is origin of replication site with conserved sequences. तो ये origin of replication का जो साइट होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का साइट होता है. वहाँ से
रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, isn't it? So therefore this is ORI stands for origin and C for conserved sequences. तो ये स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, उसे कहते हैं कंजर्व सीक्वेंसेस. कंजर्व सीक्वेंसेस इज adenine thymine rich sites where replication begins. तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये ओरिसी साइट जो होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस ज़्यादा होते हैं. तो कौन से नाइट्रोजन बेसिस ज़्यादा होते हैं? एडेनाइन और थाइमिन, ये बॉन्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि एडेनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसे ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है. इसलिए ओरिसी साइट्स आर 80 रिच साइट्स, ये भी हमें ध्यान में रखना है. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर अबाउट 50 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं ये. देयर इज़ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड्स. तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो सिंथेसिस होता है डीएनए का वो फ्रैगमेंट्स में होता है, और वो फ्रैगमेंट जो होते हैं दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के. नाउ लेट अस सी डिफरेंट कंपोनेंट्स नीडेड इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन. तो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं जबकि यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. तो ये कौन से इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है और कौन से इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है ये हम यहाँ पर देखेंगे. फॉर न्यूक्लियोसाइड्स ज़रूरी है, इज़न्ट इट? एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इज़न्ट इट, वो बहुत ज़रूरी होते हैं. इट इज़ अ रॉ मटेरियल, है ना. दिस नाइट्रोजन बेसेस दैट इज़ कॉल्ड DNTPs, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट्स. ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन बेसिस है और यही नाइट्रोजन बेसिस की मदद से डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है. सो देयरफॉर DNTP दैट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड 5 ट्राइफॉस्फेट, ये 4 किस्म के होते हैं विच इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर डीएनए सिंथेसिस. तो जैसा आप जानते हैं कि एडेनाइन लगता है तो एडेनाइन ये फॉर्म में लगता है DATP, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, उसके बाद में DGTP दैट इज़ डीऑक्सीगाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट. उसके बाद में लगेगा DTTP दैट इज डीऑक्सीथाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट और DCTP दैट इज डीऑक्सीसाइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट. So these are the 4 basic raw materials or nitrogen bases required in this form. Okay, तो ये इससे बनता है डीएनए का मॉलिक्यूल. तो ये ज़रूरी है बिकॉज दीज आर द बेसिक रॉ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन. ATP भी लगेगा, वो तो ज़रूरी है. ATP इज़ द एनर्जी और उसके साथ ये मैग्नीशियम आयंस भी लगते हैं फॉर पॉलीमरेज एक्टिविटी. सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन. अभी ये जो है तो ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स जो है इसके अलावा और भी कुछ प्रोटीन्स ज़रूरी है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए. सो देयरफॉर व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि प्रोटीन्स लगते हैं. अभी ये नाइट्रोजन बेसिस देखे हमने यहाँ पर, ये जो है तो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, इज़न्ट इट. अभी यहाँ पर प्रोटीन्स लगेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटीन्स है, एक्सेसरी प्रोटीन्स है, वो बहुत ज़रूरी है. कौन कौन से हैं तो उनके नाम याद करना है आपको. सो वी हैव रिटन दिस शॉर्ट फॉर्म्स एंड ये उनके फुल फॉर्म्स मैंने ब्रैकेट में दिए हैं. सो नाउ दिस इज़ द प्रोटीन ORC प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स. ये प्रोटीन है ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ORC. It consists of 6 subunit protein complex and its function is it identifies ORIC site. तो इसका काम जो है ये प्रोटीन का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकग्नाइज करना, दैट इज़ इट्स प्राइम फंक्शन. सो ORC इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन और ये प्रोटीन जो है ये बनता है 6 सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, इज़न्ट इट. इसके 6 सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन
ORC. Then RLF, replication licensing factor, RLF. So this RLF protein permits origin of replication at the site. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ORC ये जो प्रोटीन है इसके साथ इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये इसको असिस्ट करता है, isn't it? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जा कर के बाइंड करके उसको रिकग्नाइज करने में RLF ये प्रोटीन भी ज़रूरी होता है. देन MCM227 प्रोटीन, it is called mini chromosome maintenance protein. So this is MCM, and the MCM stands for mini chromosome maintenance protein. It is a multi protein unit of 6 MCM proteins. इसके अंदर 6 उसके सब यूनिट्स होते हैं. It is used for breaking hydrogen bonds between nucleotides. It is analogous to helicase activity in prokaryotes. So as you know, in prokaryotes there is helicase enzyme which breaks the hydrogen bonds between the 2 DNA strands. तो उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन है यूकैरियोटिक का हेलिकेज है, जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है कि ना, 2 स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको तोड़ने का काम करता है, ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कन्वर्शन सिंगल स्ट्रैंड में हो, एंड वो जो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्शन होगा तो वहाँ रेप्लिकेशन होगा. तो देयरफॉर दिस इज द हेलिकेज ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, MCM227 protein. Okay. Then another protein is that RPA, replication protein A, isn't it? RPA, replication protein A. इसका काम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP जो सिंगल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उसको स्टेबलाइज करता है, isn't it? सिंगल स्ट्रैंड क्या हो जाता है, उसका रीएनिलिंग हो जाता है कभी कभी, यानी कि डबल स्ट्रैंड का सिंगल स्ट्रैंड में जो कन्वर्शन होता है वो सिंगल स्ट्रैंड एक दूसरे को कभी अटैच हो सकते हैं, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, उसको स्टेबल रखने के लिए ये प्रोटीन काम करता है RPA. दैट होल्ड्स DNA स्ट्रैंड इन पोजीशन एंड प्रिवेंट्स रीएनिलिंग ऑफ DNA, एंड इट इज़ एनालॉगस टू SSB इन प्रोकैरियोट. तो प्रोकैरियोट के अंदर SSB प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. तो उसी प्रकार से ये भी होते हैं यहाँ पर, isn't it? ये SSB प्रोकैरियोट में होता है, तो RPA ये यूकैरियोटिक में होते हैं. तो ये सिंगल स्ट्रैंड जब खुल जाता है स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, तो वो खुले हुए सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने का काम, उसको सही ढंग से पकड़ के रखने का काम ये प्रोटीन करते हैं. CDC6 एंड CDT1, तो ये जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, सेल डिवीजन कंट्रोल 6 प्रोटीन एंड क्रोमैटिन लाइसेंसिंग एंड DNA रेप्लिकेशन फैक्टर 1. तो ये उसका ये कंपोजिशन यहाँ पर दिया है, सेल डिवीजन कंट्रोल करने वाला 6 प्रोटीन है. तो ये इसके अंदर 6 सब यूनिट्स हैं, एंड ये जो है तो एक किस्म का लाइसेंसिंग यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किया गया है, क्योंकि ये लाइसेंसिंग यानी परमिट करता है, isn't it? परमिशन देता है सेल डिवीजन को. तो ये भी ज़रूरी प्रोटीन है, CDC6 एंड CDT1. सो दिस इज़ अ लाइसेंसिंग प्रोटीन, परमिशन देने वाला प्रोटीन कि ओके चलो स्टार्ट रेप्लिकेशन नाउ, एंड DNA रेप्लिकेशन फैक्टर. तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है. सो व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट हेल्प्स इन फास्फोरिलेशन एंड लोडिंग ऑफ RLF एंड MCM प्रोटीन. तो यहाँ पर जो RLF है, MCM प्रोटीन, इसको लोड करने के लिए ये मदद करता है. सो नाउ यू कैन सी हाउ दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेटिंग. तो ये समझना है कि अलग अलग जो प्रोटीन्स है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं to start or to initiate the replication. Okay. CDC45, cell division cyclin protein 45, part of CMG complex. तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है CDC45. ये क्या करता है? सेल डिवीजन साइकिल प्रोटीन 45 कहलाता है ये. तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, CMG कॉम्प्लेक्स कहते हैं.
वो आगे हम देखेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। देन जीन्स, इट इज़ अ को एक्टिवेटर ऑफ इनिशिएशन, ये भी कोऑर्डिनेट करता है, ये भी इनिशिएशन के अंदर सहभागी होकर मदद करता है डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में। देन RFC, रेप्लिकेशन फैक्टर C, it is a DNA camp loader, loads pCNA to DNA strand। तो ये भी एक एक्सेसरी प्रोटीन है, isn't it? तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक क्लैम्प होता है, उसको लोड करने में ये मदद करता है, लेकिन एक क्लैम्प होता है, एक किस्म का एक क्या कहेंगे कि एक अटैच करने के लिए एक प्रोटीन होता है पॉलीमरेज एंजाइम को, और वो पॉलीमरेज एंजाइम को लोड करके उसको सही तरीके से पोजीशन में रखने का काम ये प्रोटीन करता है, isn't it? So it is called DNA clamp loader which loads pCNA to DNA strand। अब ये यहाँ पर लिखा है pCNA, ओके, सो दिस इज द pCNA, इट इज़ ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। इट इज़ रिंग शेप्ड प्रोटीन which holds DNA polymerase delta and epsilon to slide forward without falling off the single strand DNA during polymerization। तो ये जो pCNA है ये रिंग शेप्ड होता है, isn't it? एक रिंग की तरह होता है ये प्रोटीन, और ये क्या करता है? DNA पॉलीमरेज नाम का जो पॉलीमराइजेशन एंजाइम है DNA पॉलीमरेज, तो उसमें DNA पॉलीमरेज 2 है, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो ये दोनों जो पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स है उनको सही तरीके से डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर पकड़ के रखने का काम ये पीसीएनए करता है, ताकि व्हाइल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट डीएनए पॉलीमरेज में फॉल डाउन, वो वहाँ पे सही तरीके से पकड़ के रखने का काम ये पीसीएनए करता है। ओके, देन आरएनए प्राइमेज, ये भी इम्पोर्टेंट एंजाइम है। इसका काम क्या है? इट फॉर्म्स आरएनए प्राइमर्स विथ अल्फा पॉलीमरेज। तो अल्फा पॉलीमरेज के साथ मिलकर आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं, एंड दीज प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसके लिए आरएनए प्राइमेज ज़रूरी है, और आरएनए प्राइमेज अल्फा पॉलीमरेज के साथ काम करता है। RNase H एंजाइम है, इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड के ऊपर जो प्राइमर्स होते हैं आरएनए प्राइमर्स, उसको निकालने का काम ये RNase H एंजाइम करते हैं। ओके, देन कंपोनेंट्स नीडेड फॉर यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। अभी यहाँ पर एंजाइम्स क्या क्या लगते हैं हम ये देखेंगे। अभी ये पहले के स्लाइड में हमने क्या देखा कि ये स्लाइड के अंदर हमने देखा है कि कौन से प्रोटीन्स लगते हैं। ओके, इन दिस स्लाइड वी हैव सीन द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। ये सारे के सारे ये प्रोटीन्स है, तकरीबन 11 प्रोटीन्स है। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स। नाउ वी शैल सी द इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं। सो यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस, अभी ये यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन होते वक्त पॉलीमरेज एंजाइम्स आर very very important. So number 1 polymerase enzyme, it is written as pol alpha। ओके, ये अल्फा नाम का एंजाइम लगता है, पॉलीमरेज अल्फा। ओके, शॉर्ट में पॉल लिखा है। सो पॉलीमरेज अल्फा, सो दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट एड्स 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स टू आरएनए प्राइमर अलॉन्ग विथ प्राइमेज। तो यहाँ पर इसका फंक्शन आप देख रहे हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, प्राइमेज एंजाइम, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, उसके साथ काम करता है और आरएनए प्राइमर बनाता है। ओके, इट प्रोड्यूसेस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनाने में काम आता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, और लीडिंग के स्ट्रैंड के ऊपर एक आरएनए प्राइमर बना के छोड़ देता है। तो ये प्राइमेज के साथ काम करता है। दिस एंजाइम वर्क्स इन एसोसिएशन विथ प्राइमेज एंजाइम। ओके, दिस पॉलीमरेज एक्शन, इसका जो पॉलीमरेज एक्शन होता है वो 5' to 3' एंड रिपेयर, ये दोनों भी काम करता है।
ये कहीं कहीं पॉलीमरेज एक्शन भी कैरी आउट करता है। ये प्राइमर के साथ तो काम करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, इजंट इट। और पॉलीमरेज एक्शन भी है इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये रिपेयर भी करता है। डीएनए के अंदर अगर कोई गलती से कोई नाइट्रोजन बेसेस लग जाते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम भी ये करता है। तो इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, ये कटिंग नहीं करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये पॉलीमरेज अल्फा। नाउ अनदर एंजाइम इज पॉलीमरेज बीटा, है ना। ये एक हो गया पॉलीमरेज अल्फा, सो दिस इज अनदर पॉलीमरेज बीटा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर्स, है कि नहीं। ये डीएनए का रिपेयर करता है, और ये रिपेयर करने का डायरेक्शन बताया, पोलैरिटी बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डायरेक्शन में ये इसका रिपेयर करता है थ्रू पॉलीमरेज एक्टिविटी। ओके, तो ये पॉलीमराइजेशन भी करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और रिपेयर एक्टिविटी भी करता है, इजंट इट। बट इट डज नॉट पोजेस एक्टिविटी, है ना। एक्सोन्यूक्लियस यानी कि कटिंग करने का जो एक्टिविटी है वो इसके पास नहीं है। देन पॉलीमरेज गैमा, इजंट इट। ये तीसरा एंजाइम है, इजंट इट, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, इजंट। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में ये काम आता है एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए काम आने वाला एंजाइम है। सो पॉलीमराइजेशन भी करता है, और इट हैज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये दो एक्टिविटीज़ के पास है, इजंट इट। जैसा कि ये पॉलीमरेज अल्फ़ा एंड पॉलीमरेज बीटा ये यूकैरियोटिक के सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वहाँ, लेकिन ये कहाँ काम करता है, ये पॉलीमरेज गैमा जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करता है, इजंट इट। देन नंबर 4 पॉलीमरेज डेल्टा, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पॉलीमराइज लैगिंग स्ट्रैंड और इन फ्यू केसेस लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर भी काम कर सकता है और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर भी कहीं केसेस में काम कर सकता है। इट हैज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन एंड रिपेयर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास, और पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, दोनों भी एक्टिविटी है, इजंट इट। तो एक्सोन्यूक्लियस में क्या करते हैं, वो कट कर देता है। अगर कोई गलती से कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसको निकाल देता है और उसका रिपेयर भी करता है ये पोलैरिटी में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी में। तो ये दोनों भी एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन ये लैगिंग स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करता है जनरली। कहीं कहीं लीडिंग स्ट्रैंड में भी ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैरी आउट करता है। देन पॉलीमरेज एप्सिलॉन, सो दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम, पॉलीमराइजिंग एंजाइम in eukaryotic cell. It is present in nucleus and polymerize leading strand. ये leading strand को polymerize करता है, isn't it? Addition of nucleotides in this direction 5 prime to 3 prime direction. Okay, so this is the its 5 prime to 3 prime polymerase activity and 3 prime to 5 prime exonuclease activity ये कर सकता है, isn't it? ये उल्टा 3 prime to 5 prime exonuclease activity carry out कर सकता है। और गैप फिलिंग भी करता है ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, इजंट इट। जब वो प्राइमर्स निकाले जाते हैं तो प्राइमर्स निकालने के बाद वहाँ पे गैप तैयार होता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, उसको फिल कर देता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो ये अभी जो यहाँ पर मैंने बताया ये 5 एंजाइम जो है, तो ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले एंजाइम्स है। नाउ दिस इज टोपोआइसोमरेज 1, 2 एंड 4 हेलिकेज। ये अलग एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी नहीं करता है। ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करने वाले ये 5 एंजाइम्स है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। नाउ दिस इज टोपोआइसोमरेज एंजाइम, इट हैज़ 2 डोमेन्स, एंडोन्यूक्लियस विथ निकिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। तो ये कट भी कर सकता है, निकिंग एक्टिविटी, एंड लाइगेज विथ सीलिंग एक्टिविटी। तो कट और पेस्ट ये दोनों एक्टिविटी ये कर सकता है, लेकिन ये टेम्पररी कट कर सकता है, टेम्पररी कट करके उसको जोड़ सकता है डीएनए के मॉलिक्यूल को। तो ये टेम्पररी कटिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी कहाँ लगता है, तो इट हेल्प्स इन टू रिड्यूस
टोपोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन डीएनए अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन जब होता है तो फोर्क जो बनता है वो फोर्क के सामने एक किस्म का टोपोलॉजिकल स्ट्रेस डीएनए के ऊपर होता है ड्यू टू सुपर कॉइलिंग, और उसकी वजह से वो डीएनए के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेस बोलते हैं उसको, टोपोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये एंजाइम क्या करता है, कट और पेस्ट करके उसके ऊपर जो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आता है डीएनए के ऊपर उसको रिलीज करता है। तो ये फिगर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर topoisomerase enzyme. So therefore this is also a kind of important enzyme which reduces topological stress on the DNA ahead of replication fork. Then another enzyme, that is FEN1, it is called flap endonuclease 1 and it cleaves RNA primers. तो इसका काम है RNA primers को निकाल देना. Then ligase enzyme, it is a फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सीलिंग एंजाइम। अब ये लाइगेज जो एंजाइम होता है वो सीलिंग करता है, यानी कि पेस्टिंग करता है, सील कर देता है। ब्रेक जो होते हैं दो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स रहते हैं उसको एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम ये करता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, इजंट इट। तो ये एंजाइम्स को आपको याद रखना है। 8 एंजाइम्स है एंड देयर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। सो प्रोटीन्स भी देखे हमने और एंजाइम्स भी देखे जो यूकैरियोटिक डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर लगते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ हाउ कॉम्प्लेक्स दिस यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज़ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, अभी हमने प्रोटीन्स और एंजाइम्स और नाइट्रोजन बेसिस ये जो रॉ मटेरियल्स है और रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो देखें। Now we shall see initiation, how actually this eukaryotic replication begins. Okay, अभी ये replication initiation के लिए लगने वाले जो भी proteins है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, isn't it? So these are the initiation of eukaryotic replication proteins, isn't it? तो इतने सारे proteins initiation process के लिए ज़रूरी है। So how this replication process initiate? Now this is the double stranded DNA molecule, a piece of DNA molecule है ना। एक लंबा DNA molecule होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये छोटा सा एक उसका टुकड़ा बताया है, एक फ्रैगमेंट बताया है। ओके, नाउ दिस इज DNA molecule with ORIC साइट। अभी यहाँ पर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, देखो ORIC साइट। एंड एज आई टोल्ड यू ORIC साइट इज एडेनाइन थाइमिन रिच रीजन। तो अभी ये जो है इतना रीजन, isn't it? This much region is ORIC site which is adenine thymine rich region. ठीक है। Now here double stranded DNA with origin of replication conserved sequence. So these are the conserved sequence. ORIC site ये conserved sequence होता है, specific sequence है, इसलिए उसको कहते हैं conserved sequence. Now what happens here? You can see अभी यहाँ पर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है ORIC साइट, इसको रिकग्नाइज करने वाला ये प्रोटीन आ गया ORC, इजंट इट। जैसे मैंने बताया कि ORC ये कौन सा प्रोटीन है, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो ये आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज CTD1 प्रोटीन। ओके, अब ये CTD1 प्रोटीन ORC के साथ ज्वाइन हो गया। अभी ये प्रोटीन आकर के कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, they are joining at the origin of replication site, that is ORIC site, isn't it? So they are coming and attaching at this particular location. Okay, यहाँ पर ये अटैच हो रहे हैं। So ORC प्रोटीन CTD1 प्रोटीन आ गया, क्रोमेटिन लाइसेंसिंग एंड DNA रेप्लिकेशन फैक्टर 1, so CTD1 ये भी आकर के यहाँ अटैच हो गए। नेक्स्ट दूसरा CDC6 प्रोटीन आ गया, सेल डिवीजन कंट्रोल 6 प्रोटीन। नाउ दिस प्रोटीन इज ऑल्सो अटैच्ड हियर। ठीक है, उसके बाद में RLF, दैट इज रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग फैक्टर, दैट ऑल्सो अटैच्ड हियर। ओके, अनदर दैट इज मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, इट इज a 6 units of
सब यूनिट्स प्रोटीन, इसके ऊपर 6 सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के, 2 to 6। अब ये इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, MCM, isn't it? मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, MCM. Now all these proteins are assembled here, they aggregated here, and a complex is formed, initiation complex, and this initiation complex is called pre-initiation complex. अभी ये क्या हो गया तैयार, pre-initiation complex. Okay, so this is ODC site, and on the ODC site all these protein complexes are attached, and this complex is called pre-initiation complex. तो अभी यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ये सारा जो प्रोटीन्स है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, ऑल दिस प्रोटीन्स आर नाउ अटैच्ड हियर एंड दे विल प्रोसेस दिस पर्टिकुलर साइट, and this site will be open for replication, and this particular complex is called pre-initiation complex. Okay, now next step is activation with CMG protein. अभी ये इसका जो है ना, ये this is the initiation complex, pre-initiation complex, and this pre-initiation complex is activated. How this process occurs? Now this is the MCM protein attached here. Next, this CDC45, cell division cycle protein 45 is attached here, and this genes, isn't it, genes, a protein complex co-activator of initiation. Okay, ये भी आकर के यहाँ अटैच हो गया. सो नाउ यू कैन सी, ये तो अटैच्ड हो गए, लेकिन ये भी आकर के अटैच हो जाते हैं यहाँ पर, एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, isn't it, it's called पोस्ट इनिशिएशन CMG कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर लिखा मैंने पोस्ट इनिशिएशन CMG कॉम्प्लेक्स. तो ये CMG कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, CDC45 एक प्रोटीन है, उसके बाद MCM नाम का ये एक प्रोटीन है, उसके बाद जीन्स है, और ये जो असेंबली है ये एक्टिवेट हो जाती, ये एक्टिवेशन करता है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका इनिशिएशन यहाँ पर प्री इनिशिएशन हो गया, ये निकल जाते हैं सब प्रोटीन्स, और उस जगह पर ये आकर के अटैच हो जाते हैं, एंड दे एक्टिवेट द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स is activated by these proteins. okay, ये एक्टिवेशन में ये प्रोटीन है, ये भी है और ये भी है, तो ये प्री इनिशिएशन को ये जो प्रोटीन्स है ये इस प्रकार से यहाँ आकर के अटैच हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट इनिशिएशन CMG कॉम्प्लेक्स और असेंबली. पोस्ट इनिशिएशन CMG असेंबली एक्टिवेट द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ये प्री इनिशिएशन प्रोटीन्स आकर के इसको प्रोसेस करते हैं, फिर ये निकल जाते हैं और ये आकर के अटैच हो जाते हैं, और ये बाद में का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है. तो इस प्रकार से आप देखेंगे द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज देयर, एंड आफ्टर दिस इनिशिएशन प्रोटीन्स another proteins comes into the picture and they get attached here, isn't it, and after attachment they start or initiate the process, and this attachment is called post initiation complex, isn't it, or CMG assembly, ऐसा उसको यहाँ पर कहा जाता है. ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए कि इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इनिशिएशन का, तो इस प्रकार से होता है. अभी यहाँ पर ओरिजिन शुरू हो जाएगा, रेप्लिकेशन का ओरिजिन यहाँ पर शुरू हो जाएगा. तो वो कैसा होता है, अभी यहाँ पर ये फिगर में देखिए, इन यूकैरियोटिक DNA, दिस इज द पेरेंटल DNA, आफ्टर पोस्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये पोस्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की बात है, isn't it. तो जैसा कि अभी यहाँ पर ये पोस्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर इनिशिएशन होगा और यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे.
और इस प्रकार से बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएंगे, इज़न्ट इट। यूकैरियोटिक में ये होता है, प्रोकैरियोटिक में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और ये जो है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। So here you can see this is the eukaryotic DNA molecule, and on this eukaryotic DNA molecule, origin of replication, number of origin of replications are formed, है ना। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, ऐसा बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये लंबा DNA मॉलिक्यूल है, isn't it? तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, ओके। और यहाँ पर बताया है रेप्लिकेशन फोर्क, isn't it? ये रेप्लिकेशन फोर्क ऐसा तैयार होता है, इधर भी एक रेप्लिकेशन फोर्क है और इधर भी एक रेप्लिकेशन फोर्क है, ओके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होता है। और ये जो रेप्लिकेशन असेंबली है इसे रेप्लिकॉन्स कहते हैं। तो यू कैन सी नंबर ऑफ रेप्लिकॉन्स आर फॉर्म्ड अलोंग द लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, ओके। तो इस प्रकार से ये पिक्चर होता है। लेकिन अभी अब हम क्या देख रहे हैं, सिंगल रेप्लिकेशन बबल देखेंगे, है क्या नहीं। लेकिन ऐसा होता है, बहुत सारे रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होते हैं along the length of the eukaryotic DNA, ठीक है। सो मल्टीपल ओरिजिन साइट्स इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कॉल्ड रेप्लिकॉन्स, तो इसे कहते हैं रेप्लिकॉन्स। से बहुत सारे रेप्लिकॉन्स तैयार होते हैं। अभी जैसा हमने देखा, तो अभी यहाँ पर हम एक रेप्लिकेशन बबल देखेंगे, ओके। अभी रेप्लिकेशन का अगला प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो ये सारे प्रोटीन्स लगते हैं, isn't it? These are the proteins required for the further process. अभी ये क्या है, RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन A, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है ये RPA, इसका जिक्र मैंने पहले भी स्लाइड में किया है कि नहीं। शुरू के स्लाइड में मैंने बताया कि ये लगते हैं, ये प्रोटीन्स है। सो RPA दैट इज रेप्लिकेशन प्रोटीन A, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है ये। देन RP प्रोटीन दैट इज RNA प्राइमेज प्रोटीन है, isn't it? ये एंजाइम है RNA प्राइमेज, एंड ये पॉलीमरेज अल्फा। सो दिस इज पॉलीमरेज अल्फा, एंड दिस पॉलीमरेज अल्फा along with this RNA प्राइमेज प्रोड्यूस RNA प्राइमर्स। तो ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। देन वी हैव मेंशन्ड दिस टोपोआइसोमरेज 1 and 2, ये भी एंजाइम है, isn't it? So what is its function? The function of this topoisomerase 1 and 2 is a temporary cut and seal activity to relieve topological stress और super coiling torque। जैसा मैंने बताया कि रेप्लिकेशन फोर्क के आगे आगे वो डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर कॉइलिंग होते रहता है, और वो सुपर कॉइलिंग की वजह से एक किस्म का स्ट्रेस है ना, टोपोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, उससे डीएनए ब्रेक होने का संभावना होती है। उसको रिलीज करने के लिए ये एंजाइम काम करता है, ओके। Then RNA primase makes 8 to 12 nucleotides, and then DNA polymerase alpha add about 20 DNA nucleotides to initiate replication on both leading and lagging strands। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि RNA प्राइमेज जिसे हम RP कहेंगे और पॉलीमरेज अल्फ़ा जिसे पॉल अल्फ़ा कहेंगे, ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, तो उनका काम क्या है, दे सिंथेसाइज RNA प्राइमर्स। तो कैसा बनाएंगे RNA प्राइमर्स? सो RNA प्राइमर्स एंजाइम मेक्स 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग piece of RNA, and then DNA polymerase alpha adds 20 DNA nucleotides behind this RNA primer, isn't it? RNA का सेगमेंट बनेगा, उसके पीछे this polymerase alpha adds 20 DNA nucleotides to initiate replication on both leading and lagging strands। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये RNA प्राइमेज जो एंजाइम है, तो ये छोटा सा प्राइमर बनाएगा, कितना 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स का, और उसके पीछे अबाउट 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस ऐड करेगा ये एंजाइम, isn't it? पॉलीमरेज अल्फ़ा। तो इस प्रकार से वो RNA प्राइमर बनेगा। अब यहाँ पर फिगर देखने के बाद थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर
ये आ गया CMG असेंबली आ गई, इज़न्ट इट। अभी ये डबल स्ट्रैंडेड DNA विथ CMG असेंबली, इज़न्ट इट। तो ये हेलिकेज एंजाइम के तौर पे काम करेगी। अभी इसको ये खोलना है, इज़न्ट इट। दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA इज़ टू बी ओपन, इज़न्ट इट। तो ये जो CMG असेंबली है, दिस असेंबली विल ओपन द डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड मेक्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड बबल। ओके, तो इस प्रकार से वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा। नाउ यू कैन सी दिस CMG असेंबली ओपन्स द डबल स्ट्रैंडेड DNA। अभी ये ओपन करता है तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये ऊपर वाली स्ट्रैंड और ये नीचे वाली स्ट्रैंड के बीच में ये बॉन्ड्स है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ दिस असेंबली, CMG असेंबली। तो ये CMG असेंबली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा एंड यू विल फाइंड दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA इज ओपन, है कि नहीं। दिस सिंगल स्ट्रैंड इज सेपरेटेड एंड दिस सिंगल स्ट्रैंड इज सेपरेटेड by breaking these hydrogen bonds. Now this is called replication bubble. तो इसको हम कहते हैं replication bubble. ओके, अभी ये replication bubble बन गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ये भी इधर सिंगल स्ट्रैंड हो गया। नाउ replication के लिए अब DNA तैयार है। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज दिस MCM, है कि नहीं। ये जो है तो ये यहाँ अटैच रहेगा, है कि नहीं। ये इसका काम क्या है कि इसको बॉन्ड्स को ब्रेक करते चलना, इज़न्ट इट। तो ये CMG जो असेंबली है यहाँ पर है, इज़न्ट इट। दिस CMG असेंबली इज हियर। नाउ दिस RPA दैट इज रेप्लिकेशन प्रोटीन A यहाँ आकर के बाइंड हो गया, इट इज़ इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर डॉट। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 डॉट आ गए, यानी कि RPA प्रोटीन यहाँ आकर के बाइंड हो गया, है कि नहीं। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने का काम ये RPA प्रोटीन करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे दिस RPA प्रोटीन्स आर नाउ अटैच्ड, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए, देखिए ये RPA प्रोटीन यहाँ आ कर के सिंगल स्ट्रैंड जो बन गया है यहाँ पर उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, इज़न्ट इट। नाउ दिस इज RNA प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम आ गया। दिस RNA प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इज़न्ट इट। सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस। सेंटर में से होता है रेप्लिकेशन, बीच में से। ओके, नाउ दिस RNA प्राइमेज अटैच्ड हियर and polymerase alpha is also attached. Now you can see here RNA primase and polymerase alpha both are now ready here. अब ये क्या करेंगे, ये RNA प्राइमर बनाएंगे। तो इन्होंने RNA प्राइमर बना। So here you can see this green piece is added by RNA primase enzyme and this red piece is added by polymerase alpha. अब ये RNA प्राइमेज ने बनाया हुआ टुकड़ा है और ये पॉलीमरेज अल्फ़ा ने ऐड किया हुआ टुकड़ा है। तो ये RNA प्राइमेज ने क्या किया, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड यहाँ ऐड कर दिए। उसके बाद में पॉलीमरेज अल्फ़ा ने क्या किया, 20 DNA न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये 20 न्यूक्लियोटाइड से लाल रंग में बताया। ओके, तो इस प्रकार से यू कैन सी दिस प्राइमर इज नाउ रेडी। दिस इज कॉल्ड प्राइमर, RNA प्राइमर। ओके, सो दिस इज RNA प्राइमर। अभी ये स्टैंड के ऊपर RNA प्राइमर आ गया। उसी प्रकार से इधर भी ये स्टैंड के ऊपर RNA प्राइमर आ करके लग गए, है ना। जैसे यहाँ पर बन गए RNA प्राइमर्स, इन द सेम फैशन यू विल फाइंड दैट RNA प्राइमर्स आर synthesized on this strand also. So now you can see this is the leading strand, so it requires a single RNA primer, and this is lagging strand, so therefore it requires number of primers. So here you can see लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर ए सिंगल प्राइमर ऐड हो गया। यहाँ से ये लीडिंग स्ट्रैंड इधर से ऐसे स्टार्ट होगी। नाउ दिस लैगिंग स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल रिक्वायर नंबर ऑफ प्राइमर्स। RNA प्राइमर्स इधर बहुत सारे लगेंगे,
लेकिन यहाँ पर एक ही आरएनए प्राइमर लगेगा। ये बात को याद रखना, क्योंकि दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे प्राइमर लगेंगे और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर एक ही प्राइमर लगेगा। ओके, बाद में क्या होगा, अभी यहाँ पर ये मैंने बताया दिस इज़ लीडिंग स्ट्रैंड and this is lagging strand. So here you can see this is leading strand and this is lagging strand. Okay, so on leading strand continuous polymerization reaction will occur, a continuous DNA synthesis will occur, while on lagging strand discontinuous DNA synthesis will takes place. तो ऐसा होता है, ठीक है। So this is leading strand and this is lagging strand. Next, so I have shown here the RNA primer. ये ग्रीन रंग में जो है, हरे रंग में, that is RNA primer, और ये जो है 20 प्री न्यूक्लियोटाइड्स बाय DNA अल्फा पॉलीमरेज, है ना। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये यहाँ पर इंडिकेट किया है। सो हियर यू कैन सी दिस ग्रीन पीस इज एडेड बाय RNA primase enzyme and this 20 nucleotides are added by, isn't, यहाँ पर लिखा है 20 प्री न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बाय DNA अल्फा पॉलीमरेज, सो इट इज़ इंडिकेटेड इन रेड कलर। तो ऐसा होता है और इसको कहते हैं RNA प्राइमर। ओके, ये प्राइमर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राइमर इधर ऐड हो गए, इधर भी बहुत सारे प्राइमर ऐड हो गए। नाउ ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, यहाँ से शुरू होगा, isn't it? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन बाय CMG असेंबली। तो ये जो CMG असेंबली है, इन्होंने ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए और ये जो MCM जो प्रोटीन है ये यहाँ पे ये चल रहा है, ये यहाँ पर बताया, ये हेलिकेज की एक्टिविटी इसकी चालू है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये अटैच्ड है, लेकिन मैंने इंडिकेट पूरा ये असेंबली नहीं किया कि यहाँ ज़्यादा क्लटरिंग हो जाएगा, इसलिए। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ ब्रेकिंग द बॉन्ड, इधर ब्रेक होते जाते हैं बॉन्ड्स, ये खुलते जाता है, इधर भी खुलते जाता है, ठीक है। नाउ दिस एंजाइम टोपोआइसोमरेज विल कम हियर एंड अटैच हियर, सिमिलरली इट विल बी अटैच्ड ऑन दिस साइड ऑल्सो। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है टोपोआइसोमरेज, ये मेक्स टेम्पररी कट एंड सील एक्टिविटी टू रिलीव टोपोलॉजिकल सुपर कॉइलिंग टॉर्क। तो ये जैसे भी यहाँ पर रेप्लिकेशन आ जाएगा, isn't it, रेप्लिकेशन ऐसा होते होते आगे बढ़ेगा, तो इधर जो है ये साइड में सुपर कॉइलिंग होते रहता है, DNA का सुपर कॉइलिंग होते रहता है, इधर भी उस प्रकार से ही सुपर कॉइलिंग होते रहता है। एंड दिस सुपर कॉइलिंग क्रिएट्स ए काइंड ऑफ टेंशन, एंड टू रिलीव दिस सुपर कॉइलिंग टेंशन और स्ट्रेस, this topoisomerase makes temporary cut and seal activity. So this enzyme carry on that temporary cut and seal activity, due to which a tension or supercoiling torque is relieved. तो ये इसका काम है। So in this way you will find that this is replication where bidirectional replication is initiated, और रेप्लिकेशन यहाँ स्टार्ट होता है बबल के सेंटर में से, ये भी ध्यान में रखना। ओके, हियर आई हैव शोन यू दिस सिंगल बबल। अभी यहाँ पर मैंने ये जो बबल बताया आपको, इज़न्ट इट, तो ये किस लिए बताया, तो यहाँ जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये सेंटर में होता है। अभी देखिए ये जो रेप्लिकेशन जो बबल है, इज़न्ट इट, तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगा, हाँ, तो इन दिस फिगर यू कैन सी ये रेप्लिकेशन बबल है, दिस इज रेप्लिकेशन बबल। नाउ हियर इज द ओरिजिन, इज़न्ट इट, यहाँ से स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन, इज़न्ट इट। तो हियर यू कैन सी दिस इज RNA प्राइमर इन ग्रीन कलर, एंड ऑन दिस RNA प्राइमर in this direction continuous addition of nucleotide is taking place, isn't it? और ये जो स्टैंड है ये लैगिंग स्टैंड है, एंड यू कैन सी हियर दिस ग्रीन पोर्शन इज RNA प्राइमर। ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर ऐसा लैगिंग स्टैंड बढ़ रहा है, isn't it? और लीडिंग स्टैंड कैसा जा रहा है, ये ऐसा इधर जा रहा है टुवर्ड्स द फोर्क, और लैगिंग स्टैंड
it is developing away from the fork, isn't it? तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है, isn't it? तो यहाँ आप देखेंगे कि this lagging strand is growing in this fashion in the form of fragments, isn't it? And this leading strand is progressing in this direction towards the fork, isn't it? तो इस प्रकार से ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ओके ये बबल का सेंटर है वहाँ से. सो देयरफॉर दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड. हियर दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो रेप्लिकेशन बबल एक रेप्लिकेशन बबल है, लेकिन फोर्क दो है. ये साइड में भी एक फोर्क है, एक साइड में फोर्क है. दिस इज कॉल्ड फोर्क, isn't it? So this is called fork. ये फोर्क होता है, ये वाला दिस इज फोर्क. तो दो फोर्क है. तो नाउ वी शैल कंसिडर वो सिंगल फोर्क. अभी हम एक ही फोर्क ध्यान में लेकर के इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. सिंगल फोर्क लेंगे, दो फोर्क नहीं लेना है हमें. तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज वी शैल कंसिडर सिंगल फोर्क, ओके. तो अभी ये फोर्क तैयार हो गया, isn't it? ये बबल तैयार हो गया. इधर दो फोर्क है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. अभी आगे क्या होगा? नाउ एक्चुअल दिस प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस. नाउ अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया. अभी इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, अभी इलोंगेशन होगा. इनिशिएशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल भी हो गया, isn't it? अभी वो रेप्लिकेशन बबल के अंदर अभी रेप्लिकेशन फोर्क होगा और elongation of DNA strand होगा. So for elongation of DNA strand, these are the enzymes required, isn't it? So what are these enzymes? So you can see RFC replication factor C DNA clamp loader ये लगेगा, isn't it? अब ये clamp है, ये proliferating cell nuclear antigen. So this is a kind of clamp. इसलिए मैंने इसको ऐसा सर्कुलर बताया है ना. तो ये क्लैम्प की तरह काम करता है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन. इसको लोड करने का काम RFC प्रोटीन करता है, रेप्लिकेशन फैक्टर C DNA क्लैम्प लोडर. सो दिस लोड्स दिस PCNA, isn't it? एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंजाइम. नाउ दिस इज एंजाइम, ये देखिए दिस इज द एंजाइम DNA polymerase epsilon, and this enzyme carry on polymerization on leading strand. And this is another DNA polymerase delta which carry on polymerization of lagging strand. तो लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर सिंथेसिस करेगा पॉलीमरेज एप्सिलॉन और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर पॉलीमराइजेशन करेगा पॉलीमरेज डेल्टा, ओके. अभी ये जो एंजाइम्स होते हैं ये फंक्शनल कैसे बनते हैं, isn't it? फंक्शनल पॉलीमराइजेशन एंजाइम एप्सिलॉन कॉम्प्लेक्स विथ लोडर फॉर लीडिंग स्ट्रैंड. ये फंक्शनल, ये अकेले काम नहीं करेंगे. दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम्स विल नॉट वर्क singly, isn't it? They need some associated factors. तो ये फैक्टर इसके साथ कंबाइन हो गए and then these enzymes will become functional, okay. Functional polymerization enzyme delta complex with loader for lagging strand. तो ये फंक्शनल बनेंगे पहले, अभी ये नॉन फंक्शनल है. तो ये फंक्शनल कैसे बनेंगे? तो पहले क्या होगा, अभी दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क है कि नहीं. अभी ये फोर्क मैंने बताया यहाँ पर है कि नहीं, ये फोर्क है रेप्लिकेशन फोर्क. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज द पोलैरिटी. 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस इज अपोजिट पोलैरिटी, ओके. नाउ दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एंड दिस विल बिकम लैगिंग स्ट्रैंड because it is 3 prime to 5 prime, okay. Now this topoisomerase enzyme is attached here, isn't it? ये बताया जैसे कि पहले स्लाइड में बताया, वो यहाँ पर अटैच रहेगा. This is topoisomerase enzyme. It remain attached here because this enzyme has to relieve this torsional stress, isn't it, due to supercoiling. For that reason topoisomerase is attached here, and this is the
CDC और ये जीन्स और MCM कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये CMG हेलिकेज असेंबली यहाँ पर अटैच्ड है। तो फंक्शन ऑफ दिस CMG हेलिकेज एंजाइम और कॉम्प्लेक्स इज टू ओपन दिस स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये ब्रेक करते करते आगे चलते रहता है, इसके आगे ये चलते रहता है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। सो दिस CMG हेलिकेज assembly is still attached here. Then RPA, that is single strand binding proteins, okay, RPA single strand binding proteins which stabilize this single strand, ये single strand को stabilize करते हैं। Now primer, ये तो मैंने बताया कि primer add होगा, okay, so this is the primer on the leading strand, single primer is required, okay, now primer is here on the leading strand, single primer is required, okay, now on this is the primer, RNA primer, ये बताया, isn't it, और ये वही बताया मैंने, लाल रंग का जो बताया, तो ये 20 प्री न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बाय DNA अल्फा पॉलीमरेज, ठीक है, ये RNA प्राइमर है। तो ये RNA प्राइमर इधर आ गया, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर देखिए बहुत सारे प्राइमर लगेंगे। सो हियर यू कैन सी दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दीज आर द प्राइमर्स, ओके, ये पहला प्राइमर, ये दूसरा प्राइमर, तीसरा, चौथा। सो यू कैन सी दिस लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर मेनी प्राइमर्स, वेयर एज लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर सिंगल प्राइमर, ओके। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, दिस प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन ये यहाँ आ गया, ओके, उसके साथ RFC प्रोटीन कंबाइन हो गया, ओके, दिस RFC प्रोटीन कंबाइन हियर। उसके बाद में ये DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन ये भी कंबाइन हो गया। नाउ दिस बिकेम फंक्शनल पॉलीमराइजेशन एंजाइम एप्सिलॉन कॉम्प्लेक्स विथ लोडर फॉर लीडिंग स्ट्रैंड। अभी ये लीडिंग स्ट्रैंड के लिए जो है ना, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया अलॉन्ग विथ दिस प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। तो आप देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स एक जगह आ जाते हैं, एंड व्हेन दिस कंपोनेंट्स कम टुगेदर दे बिकम फंक्शनल। नाउ दिस इज द फंक्शनल पॉलीमराइजेशन एंजाइम एप्सिलॉन, isn't it? It is a complex, isn't it, with loader for leading strand। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा। सिमिलरली अब क्या हो रहा है, ये प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन ये आ गया, इसके बाद में RFC प्रोटीन आ गया, देन DNA पॉलीमरेज डेल्टा आ गया, ओके। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मेक्स दिस एंजाइम फंक्शनल, ओके, फंक्शनल पॉलीमराइजेशन एंजाइम डेल्टा कॉम्प्लेक्स विथ लोडर फॉर लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड के लिए काम करेगा, एंड दिस विल वर्क फॉर लीडिंग स्ट्रैंड। सो दिस इज फंक्शनल लीडिंग स्ट्रैंड polymerization enzyme epsilon, and this is functional polymerization enzyme delta for lagging strand। अभी ये दोनों भी एंजाइम तैयार है अभी, ओके। अभी इधर ये प्राइमर भी तैयार हो गए। नाउ प्राइमर्स आर रेडी ऑन लैगिंग स्ट्रैंड एज वेल एज ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। अभी ये प्राइमर के ऊपर पॉलीमराइजेशन चालू होगा, isn't it? So polymerization process takes place when primers are ready। So now here on leading strand a single primer is required, so therefore this strand is now ready for polymerization। Similarly on lagging strand number of primers are ready, now this strand is also ready for polymerization। और ये जो enzyme है, this enzyme is also functional now due to this assembly, and this is the epsilon enzyme which will work here, and this functional polymerization enzyme delta will work on this strand। अभी देखिए ये आ गया इधर, isn't it, functional polymerization enzyme epsilon इधर आ गया। So here you can see this functional polymerization enzyme epsilon, it is attached here, isn't it, on this primer। Similarly this functional polymerization enzyme delta is now attached here on this primer। अभी यहाँ पर आकर वो जुड़ गया। Now polymerization activity will begin and they will go on adding this nucleotide in this direction, okay। So यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि दिस स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस डायरेक्शन, है ना। अभी यहाँ पर ये सिंथेसिस होगा, पॉलीमराइजेशन इन दिस डायरेक्शन होगा। सो हियर यू कैन सी, ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इजंट इट। क्योंकि ये स्ट्रैंड कैसा है, दिस स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है। सो दिस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी taking place continuously, so therefore it is leading strand, and this continuous addition on this primer is taking place in 5 prime to 3 prime direction, and this is a continuous strand, therefore it is called leading strand, and this strand is progressing towards replication fork। ये भी याद रखना है कैसा ग्रो हो रहा है ये स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बढ़ रहा है। अभी लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर, अभी यहाँ पर ये एक छोटा सा टुकड़ा ऐड हो गया न्यूक्लियोटाइड का, इजंट इट, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा ऐड हो गया, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये एंजाइम ये डायरेक्शन में पॉलीमराइज कर रहा है। अभी आगे कुछ नहीं है। नाउ दिस एंजाइम विल शिफ्ट हियर, अभी यहाँ आ जाएगा, अभी यहाँ से ये एंजाइम क्या होगा, इजंट इट, कौन सा एंजाइम है, पॉलीमरेज डेल्टा एंजाइम। Now this polymerase delta enzyme, after synthesizing this small piece of DNA, will shift here, अभी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये एक छोटा टुकड़ा बनाएगा DNA का, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा और यहाँ पे और एक छोटा टुकड़ा बना देगा, and then it will here and will synthesize a small fragment here also. So in this way you will find this on lagging strand the synthesis is taking place in the shape of fragments, isn't it, and this enzyme polymerase delta has to shift from here to here, isn't it। तो ये जो हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा, isn't it, this polymerase delta enzyme is synthesizing this piece here, then it will shift here, again it will add a small piece here, again it will shift here, and again it will synthesize a small piece here, again it will shift here. So in this way it will go on shifting, isn't it, बैक साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, बैक साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। सो इट इज़ ए discontinuous strand, isn't it, this strand is discontinuous and this strand is continuous, so therefore it is leading strand and this is lagging strand. So this is important thing that you have to understand. Okay, अभी ये इस प्रकार से हो रहा है। नाउ हियर यू कैन सी इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्योंकि दिस स्ट्रैंड इज पैरेंटल स्ट्रैंड और टेम्पलेट इज इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, एंड यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम शॉर्ट सेगमेंट्स is being added. So first segment is added here, then second segment is added here, third segment is added here, then fourth, and so on. So it will go in this direction. Now this strand, lagging strand, is being synthesized in this direction. So you can see this lagging strand is growing in this direction and leading strand is going in this direction. तो opposite है इनका direction, ये भी आपको याद रखना है, isn't it? So it is, this lagging strand is growing towards fork and this leading strand is growing away from the fork. So these are the important features you have to note down here. So in this way you will find that ये elongation हो रहा है, ऐसा elongation होता है. So this elongation is taking place in small fragments and therefore it is called Okazaki fragments, है ना? So it is a name of scientist given to these fragments because he has worked on this particular fragments and he studied all these things very carefully. Therefore, the name is given here Okazaki. ठीक है? So these are the Okazaki fragments. तो इस प्रकार से ये Okazaki fragments में तैयार होगी, ये elongation होगा, ये continuous में होगा और इस प्रकार से elongation of DNA strand will takes place. और बाद में फिर ये प्राइमर्स निकाले जाएंगे, isn't it? और फिर बाद में प्राइमर्स निकालने के बाद जो गैप होगा उसको भी सील किया जाएगा, isn't it? So this is the process of
यूकैरियोटिक डीएनए इलॉन्गेशन, एंड दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिसके ऊपर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो ये स्ट्रैंड के ऊपर हो रहा है, तो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड दिस डीएनए new strand is being synthesized, isn't it? This is old strand and this is new strand, so it is a semi conservative process, isn't it? तो इस प्रकार से ये elongation होते चले जा रहा है, isn't it? Now here I have shown the simplified figure, isn't it? So here you can see this is the replication fork and all this assembly is there, MCM है ना 227, ये भी है यहाँ पे CDC 45 है, जीन्स है ना, ये हेलिकेज एक्टिविटी करते चले जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक करते चले जाते हैं, और यू कैन सी पॉलीमरेज एप्सिलॉन इज देयर ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड पॉलीमरेज डेल्टा on lagging strand. So this leading strand is going towards the fork and this lagging strand is going away from the fork, okay, in the form of small pieces, fragments, that is called Okazaki fragments, okay. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सब देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर PCNA है, isn't it, clamp है ये, तो इस प्रकार से ये all this process is taking place and this is called elongation. Okay, so this is the elongation and replication in eukaryotic DNA. So hope you understand this presentation. So I recommend that you view the presentation repeatedly and prepare your own notes. Okay, so thank you friends, thank you very much.